Good morning, students. Okay, today's we studies 11th standard, 11th commerce. Subject is account, and you have already studied about for this topics, and that the chapter is dual effect and types of transactions. You have studied in a previous lectures whatever the dual effect and types of transaction. The first of all you have studied about the transactions. What is the meaning of transactions? Then at that time I am telling to you that then there are two types of transactions. That first of all that transactions is take out from the business transactions. And what is the business transactions? There are many types of transaction in this our life situations. But what is the business transactions? So in that situations there are business transactions. That means business transactions means and which transactions impact of two persons, and that's instead of goods and services conversations, and that's in terms of money, and that transaction is a business transaction. And types of business transactions you have studied. There are two types: economic transactions and non-economic transactions. And in the second part is what is the economic transaction, you have already studied. That's in terms of money measurement, and there are many types of economic transactions you have studied. Now today we will study about the types of transactions. Today's we will study about the types of transactions. What is the types of transactions? तो सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शंस के बारे में स्टडीज करेंगे. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस? देन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस. तो स्टूडेंट्स कैश ट्रांजैक्शंस है क्या एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या है, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. बिकॉज accounts basic necessities and basic needs for this chapters given. And that is what it is. First of all you have to prepare the journal entries, and journal entries also dependent to the transactions and types of accounts. Then first of all you have introduced what is the transaction. First of all you read about the transaction and what types of transactions you conserve that with, and whatever that's a cash transactions or a credit transaction. That means we have given the definition about the cash transactions. सबसे पहले आपको पहले पहचानना जरूरी है कि कैश ट्रांजैक्शंस है क्या, कैश ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशंस क्या है, और वो डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आप ये स्टडीज कर सकते हो कि ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है. तो यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको नोटेट किया हुआ है कि इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली. सर्कल दिस वर्ड. Circle this word. Okay, in this types of transaction money is paid or received. या तो आपको कैसे पता चलेगा इस ट्रांजैक्शंस में, जैसे आपको लास्ट टाइम सिखाया था बार्टर सिस्टम. तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज या एसेट्स के आप एक्सचेंज करते हो, और एक्सचेंज करने पर आप यहाँ पर मनी रिसीव करते हो, मनी पे करोगे. बट ये मनी जो है वो रिसीव और पे कब कर रहे हो? इमीडिएटली. कब आप रिसीव कर रहे हो और कब आप पे कर रहे हो? इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट आप पेमेंट कर रहे हो. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं. फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कोई मॉल में जाते हो, शॉपिंग सेंटर जाते हो, आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तो आप क्या उसका बायोडेटा लेने वाले हो सामने शॉपकीपर का? नहीं. क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट परचेस किया, वो आपको भी नहीं जानता, ना आप उसको जानते हो. आपने क्या किया? ऑन द स्पॉट पैसे निकाले, क्रेडिट कार्ड निकाला, डेबिट कार्ड निकाला, ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, प्रोडक्ट लिया, घर आ गया. वही आपका क्या है? कैश ट्रांजैक्शंस. आपने क्या किया? ऑन द स्पॉट पेड किया, और सामने वाले ने ऑन द स्पॉट क्या किया? रिसीव किया. यानी मनी क्या कर रहे हो आप? पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो? इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट, एट प्रेजेंट सिचुएशंस में आप मनी रिसीव करो या पे करो. फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. वो आपको किसके अकॉर्डिंग? गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में आप मनी रिसीव करो या मनी पे करो. That types of transactions are called the cash transactions. First of all, again repeat these definitions. In these types of transactions, money is paid or received immediately for the exchange of goods or services.
That type of transaction are called cash transactions. In short में आपको एक ही पॉइंट माइंड में सेटलमेंट करना है एंड दैट इज इमीडिएटली। आप ऑन द स्पॉट अगर पे कर रहे हो, ऑन द स्पॉट रिसीव कर रहे हो, इमीडिएटली सिचुएशंस पर पे या रिसीव कर रहे हो, दैट्स ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड द कैश ट्रांजैक्शंस। ओके, उसके काफी सारे पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शंस फॉर द गुड्स आपके 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, या तो आप गुड्स एक्सचेंज करोगे, या फिर एसेट्स एक्सचेंज करोगे, या फिर सर्विसेज एक्सचेंज करोगे। एसेट्स क्या है, गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है, शॉर्ट में मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट डिटेल में जब हम टॉपिक्स पर आएंगे। गुड्स क्या है, जैसे कि आप कोई भी शॉप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका पर्टिकुलर जो टाइप्स है वो आपका गुड्स होता है। जैसे आप क्लोथ का मार्केट स्टार्ट कर रहे हो, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या गारमेंट का शॉप आप रख रहे हो, तो क्लोथ आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। और अगर आप ग्रोसरी शॉप रख रहे हो तो व्हीट, राइस, ये सब आपके क्या हो गए, गुड्स हो गए। ओके, एसेट्स क्या है, एसेट्स जो आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो और उसका प्रॉफिटेबल मार्जिन्स काफी टाइम लॉन्ग ड्यूरेशंस तक रहे, ऐसे को आप क्या कहोगे, एज अ वन टाइप ऑफ एसेट। सर्विसेज यानी कि आप, वो भी आपको पता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा भी होगा कि सर्विसेज क्या है, आप सामने किसी को सर्विसेज दे रहे हो सामने, या फिर सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हो, उसके बदले में आप पे करो या रिसीव करो, दैट इज अ सर्विसेज। तो कैश ट्रांजैक्शंस फॉर द गुड्स, इसका मतलब ये है कि आप जब कैश ट्रांजैक्शन गुड्स के लिए करोगे तो गुड्स आप परचेस कर रहे हो और उसके एक्सचेंज में मनी रिसीव करोगे, या फिर गुड्स को सेल करोगे तो परचेस करोगे तो आपको पे करना है, एंड सेल करोगे तो आप रिसीव करना है। शॉर्ट में मीनिंग ये है कि आप जो है गुड्स क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि आप या तो परचेस करोगे या फिर आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो परचेस अगर करोगे तो आपको पेड करना होगा ऑन द स्पॉट, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्या करोगे, आप रिसीव। ये दो सिचुएशंस आपकी होगी, कब, जब आप गुड्स के अकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। सामने अगर गोज आउट हो रहे हैं, दैट यहाँ पर आपने गोज आउट किया है, यहाँ पर कंज्यूम किया है, यानी कि परचेस क्रिएट्स हो रहा है और सेल्स क्रिएट्स हो रहा है। गुड्स परचेस करोगे तो कंज्यूम होगा, और सेल करोगे तो गोज आउट होगा। तो अगर परचेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और सेल करोगे तो क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। देन सेकंड पॉइंट, कैश ट्रांजैक्शन फॉर द एसेट्स, वही सिचुएशन आपकी एसेट्स में भी आ जाएगा। एसेट्स में भी आप या तो परचेस करोगे या क्या करोगे, सेल करोगे, और दोनों ही सिचुएशन में परचेस करोगे तो पेड, एंड सेल करोगे तो क्या होगा, रिसीव। ओके, जैसे कि अ मशीन वर्थ ₹5000 सेल्स, सेल ऑफ मशीन फॉर 5000, या परचेस गुड्स ऑफ वर्थ ₹1000, that's a varieties of examples of goods. And the next point is the cash transactions for the service. सर्विस के लिए कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपका सर्विसेज में क्या आता है, जैसे रेंट हो गया, रेंट है आपका, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है। इसमें क्या कर रहे हो, ब्रोकरेज है, आपने क्या किया, बोनस, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, ये सब में क्या कर रहे हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज रिसीव कर रहे हो। बदले में आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को पे कर रहे हो या फिर अमाउंट रिसीव करोगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शंस। और उसका लास्ट फोर्थ टॉपिक है कि ट्रांजैक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल। ये मैंने क्यों लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले तो आपको रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब कि आप परचेस आज करो और अमाउंट पे कब करोगे, फ्यूचर्स में। परचेस प्रेजेंट एंड पेड फ्यूचर, दैट इज अ रिसीवेबल। पेएबल इसका अपोजिट। सॉरी, ये मैंने आपको क्या बताया, रिसीवेबल नहीं, दैट इज वन टाइप ऑफ पेएबल। परचेस से रिलेटेड आपको ऑलवेज क्या आएगा, पेएबल आएगा। यहां पर हम रिसीवेबल सीख लेते हैं।
परचेज आप आज करो, पे फ्यूचर्स में करो, और रिसीवेबल का मतलब कि आप सेल अभी करोगे प्रेजेंट में, एंड रिसीव आप कब करोगे, रिसीव आप करोगे फ्यूचर्स में। दैट इज अ वन टाइप ऑफ पेबल्स। तो आप ये सोचोगे सर कि हम फ्यूचर्स में पे करेंगे और फ्यूचर्स में रिसीव करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी कि अगर हम फ्यूचर्स में पे कर रहे हैं, फ्यूचर्स में रिसीव कर रहे हैं, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस कैसे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, एंड बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि आप की पास्ट की एडजस्टमेंट डिपेंड टू कहां पर, पास्ट। आपका पास्ट का रिसीवेबल हो या फिर पेएबल हो, और आप प्रेजेंट में रिसीव कर चुके हो या पेड कर चुके हो, दैट्स ट्रांजैक्शंस आल्सो इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। फिर से ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने लास्ट मंथ में कोई मशीनरी परचेस की और उसके 50,000 आपके पे करने बाकी हो, और प्रेजेंट में आपने यानी कि लास्ट मंथ की मशीन के पे आप इस मंथ में कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आज की डेट में इस मंथ का जब आप जर्नल बनाओगे या इस मंथ का अकाउंट्स रिकॉर्डेड करोगे, तो आपको ये रिकॉर्डेड आपको किसमें काउंट करना होगा, कैश ट्रांजैक्शन में, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस में तो आपके पास है मनी गई, भले वो आपकी लायबिलिटीज है या फिर पेबल्स है पास्ट की, लेकिन आप प्रेजेंट में उसको पे कर रहे हो, और जब आप प्रेजेंट में पे कर रहे हो, दैट टाइम्स you have paid the some amount of cash. That means cash balance also decreases, and the cash balance also decreases. At that time you have to call that transaction is cash transaction. And similar that about our receivable. In the past you have sold some types of goods or machinery, and that's dues received in present situation. At that time you prepared your account, and at that times you receive at the amount of goods whichever you have sold in a past situations, and received that money in a present, and that is a cash transactions also included in the cash transactions. Okay students, so you have studied first cash transaction, and in this cash transaction you have studied first of all cash transaction for goods, cash transaction for assets, and cash transactions for services, and the last cash transactions for the receivable and payables. And now the next point, that's a credit transaction.